Hello 7th class students, we are reading the chapter The Delhi Sultanate. Okay, this one is the part 3rd video of this chapter. In previous video we have learned about the battle between Muhammad Ghori and the Prithviraj Chauhan, the establishment of the Delhi Sultanate, the slave dynasty, and Qutbuddin Aibak was the first sultan of the Delhi Sultanate. Okay, after that the time period of the slave dynasty we have read in previous videos. Okay, in this video we will read the Khalji dynasty. Okay, you know student, Balban died in 1287 and the public order of the country was threatened with anarchy after Balban's death. Okay, the slave dynasty of Balban came to an end within 3 years of his death. In 1290, Jalaluddin Khalji, the governor of Samana, occupied Delhi by military coup and declared himself as the Sultan. Okay, so we will read the time period of Khalji dynasty. Okay, so let's start. Okay, now student, the Khalji dynasty and the period of the Khalji dynasty AD 1290 from AD 1290 to 1320. Is that clear? And the Jalaluddin. Okay, Jalaluddin Khalji. कौन थे? जलालुद्दीन खालजी was a founder of, ये थे founder of Khalji dynasty. Is that clear? Jalaluddin Khalji was the founder of the Khalji dynasty. और जब वो 70 साल के थे, 70 years के थे, तब क्या किया? He ascended the throne. He was 70 years old. Okay, his nobles thought him to be a weak and lenient ruler and turned against after him. And after a rule of 6 years, 6 साल के बाद जब वो राजा थे, सुल्तान थे, तो after 6 year, 6 साल के बाद क्या हुआ? He was killed by his nephew. Killed by, इसको मार दिया गया. Killed by, किसने मारा? His nephew, उसके नेफ्यू ने मारा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खालजी. Okay, and who declared himself the Sultan. ओके, सो यहाँ ये जलालुद्दीन खालजी का टाइम पीरियड यहीं पर फिनिश होता है. और उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं सुल्तान, वो है अलाउद्दीन खालजी. अलाउद्दीन खालजी कौन था? द नेफ्यू थे किसके? जलालुद्दीन खालजी के. और उन्होंने क्या किया? जब ये 70 साल के थे तब ये यहाँ सुल्तान बने थे. और आफ्टर द 6th year he was killed by his nephew named Alauddin Khalji and he declared himself the Sultan. Just remember. Okay, and the student, now next turn किसकी आती है? अलाउद्दीन खालजी की. and the time period of Alauddin Khalji was AD 1296 to 1316. अब वो यहाँ पर देखो, listen to me, 1290 से 96 तक किसका टाइम पीरियड था? जलालुद्दीन खालजी का. ओके, एंड अलाउद्दीन खालजी was the first sultan. ये फर्स्ट सुल्तान थे. who built, was first sultan who built an empire. यहीं से एम्पायर, बहुत बड़े एम्पायर का बनना स्टार्ट हुआ. ओके, and he was an ambitious ruler.
a shrewd administrator and a wise general. ओके इसमें इतनी क्वालिटी थी. As soon as he occupied the throne, he set on a campaign to extend his empire. He conquered Gujarat, Malwa and almost the whole of Rajasthan under his control. It means क्या है कि इसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, दूर दूर तक अपने एम्पायर को फैलाते चले गए. ओके. And the student in the Deccan and the South India, he forces raided Devagiri, Rangal and Parasmudra. He, however, did not annex the territories. Okay. He conquered as long as the defeated kings agreed to acknowledge his authority and pay tributes to him. He allowed them to continue as ruler. His plundering campaign in Srirangam and Madurai and Rameshwaram made him rich. जैसे जैसे इन्होंने मदुरई को रामेश्वर को अपने में मिलाया, ये बहुत ही रिच होते चले गए. ओके. इन्होंने क्या किया? ही डिड नॉट एनेक्स द टेरिटरीज. इन्होंने टेरिटरीज को अपने में नहीं मिलाया, बट ये जिन भी राजाओं को हराते चले गए उनसे वहाँ से उन्हें अथॉरिटी मिलती गई और वो उन्हें पे करते रहे. ओके. एंड द स्टूडेंट अलाउद्दीन खालजी के टाइम पीरियड में मिलिट्री रिफॉर्म्स. मिलिट्री कैसे थी? मिलिट्री okay. So to keep his army under control, he had a system of spies to keep the Sultan informed of all the development. Okay. अपनी आर्मी को वो अंडर कंट्रोल रखने के लिए क्या करते थे? टू कीप अंडर कंट्रोल क्या करते थे? वो हैड अ सिस्टम बनाया था उन्हें, और स्पाइस टू कीप द सुल्तान इन्फॉर्म्ड करते थे वो किसके लिए? ऑल द सिस्टम डेवलपमेंट, इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल डेवलपमेंट. ओके. एंड अलाउद्दीन खालजी पेड सैलरी टू हिज सोल्जर्स इन कैश. और वो कैश में अपने सोल्जर्स को सैलरी देते थे. ओके. पेड सैलरी टू हिज सोल्जर्स इन कैश. तभी तो उनकी मिलिट्री इतनी पावरफुल बनती चली गई, क्योंकि अगर मिलिट्री की ज़रूरतों को पूरा किया जाए और उनको खुश रखा जाए तो वो अपने सुल्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उनको काम करके देती हैं, और पूरे के पूरे किंगडम को दूर दूर तक फैलाने में और पावरफुल बनाने में भी मिलिट्री बहुत ज़्यादा साथ देती है. मिलिट्री के बिना राजा कुछ भी नहीं होता. ओके. और वो एक डिटेल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड भी होता था उनके पास. डिटेल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड होता था उनके पास, और वो रिकॉर्ड क्या करता था? ईच सोल्जर वॉज मेंटेन्ड एंड ट्रुप्स वर रेगुलरली इंस्पेक्टेड. ओके. ईच सोल्जर्स, हर एक सोल्जर्स के लिए मेंटेन्ड रखते थे उनको, एंड ट्रुप्स वर रेगुलरली इंस्पेक्टेड. ओके. उनकी जांच की जाती थी. Horses were branded to make sure that the soldiers do not substitute them with cheaper ones. Okay. और जो सेना को जो हॉर्सेस प्रोवाइड किए गए थे, हॉर्सेस वो भी गुड ब्रांडेड थे वो बिल्कुल अच्छी उसके थे. क्योंकि एक सोल्जर्स के लिए जब वो हॉर्स पर फाइट करने के लिए जाते थे तो हॉर्स का भी ब्रांड होना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ. ओके. क्योंकि हॉर्सेस काफ़ी ट्रेंड भी होते थे, वो ट्रेंड होते थे और उनमें स्किल्स भी होती थी.
एंड सोल्जर्स के रिफॉर्म्स के साथ साथ उस टाइम में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी था, और वो क्या था, अलाउद्दीन नीडेड रेवेन्यू टू पे फॉर हिज वॉर एक्सपेंसेस। ओके, उसको ज़रूरत होती थी अलाउद्दीन को, किसके लिए, वॉर, जो वॉर में एक्सपेंस खर्चा हो जाता था उसके लिए उसको पैसों की भी ज़रूरत पड़ती थी। सो ही देयरफॉर इंट्रोड्यूस्ड मैनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उसने क्या किया, ही रेज्ड द लैंड टैक्स, ही रेज्ड द लैंड टैक्स। वाई? इन द फर्टाइल रीजन ऑफ दोआब, एक दोआब का क्या था, फर्टाइल रीजन था, एरिया था, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाया। ही मेड श्योर द पीजेंट्स वर नॉट ट्रबल्ड बाय द नोबल्स टू पे मोर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, what he did to discourage corruption, he introduced a system of auditing the accounts of his officer. Okay, to discourage करप्शन को रोकने के लिए, उनका बढ़ावा उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ, एक सिस्टम उसने बनाया, ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ, वो सिस्टम क्या था, ऑफ ऑडिटिंग, जो भी अकाउंट्स होंगे, ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ हिज ऑफिसर्स। ओके, एंड ही लोवर्ड, और उन्होंने क्या किया, लोवर्ड का मतलब है लोवर्ड द प्राइस ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स लाइक व्हीट, बहुत सी जो चीज़ें थी, गुड्स थी, वो गुड्स कौन कौन सी थी, सच एज wheat, rice, sugar, cloths, cooking oil. ओके, ये जितने भी चीज़ें थी उन्होंने क्या किया, इनके जितने भी प्राइस थे वो कम किए। ओके, and this way he could pay a low salary to the army and could afford to have a large army. Okay, इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने सोल्जर्स को सैलरी कैसे दी, बहुत लो सैलरी दी, लो थी, और उनकी सैलरी कम थी, और जैसे वो अफोर्ड कर पाए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लार्जर आर्मी वो आसानी से उन्होंने बना ली। स्टूडेंट, अलाउद्दीन खालजी वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट। ओके, वो आर्ट के प्रति उनका बहुत ही प्यार था, पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑल्सो, एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मीन्स द आर्ट ऑफ मेकिंग हाउस, घर बनाने की कला को, द स्टडी ऑफ मेकिंग हाउस। ओके, और वन मोर थिंग स्टूडेंट, पोइट एंड म्यूजिशियन अमीर खुसरो, एक बहुत ही फेमस, बहुत ही हमारे इतिहास में अमीर खुसरो रहे हैं। ही वॉज वेरी फेमस पोइट थे, एंड और क्या थे ये, म्यूजिशियन। ओके, एंड वन अनदर ऑल्सो शेख निजामुद्दीन औलिया, और इनके कोर्ट में वन शेख निजामुद्दीन औलिया, ये भी क्या थे, बिलोंग टू हिज कोर्ट। ही बिल्ट एंड अलाउद्दीन ऑल्सो बिल्ट मैनी मॉन्यूमेंट्स, he built many monuments
ही बिल्ट द सिटी ऑफ सिरी ऑफ हिज सोल्जर्स। उन्होंने अपने सोल्जर्स के लिए, अपने सैनिकों के लिए क्या बनाया? सिटी ऑफ सिरी। जस्ट रिमेंबर इट, ओके। अलाउद्दीन खिलजी was made city of Siri for his soldiers and about 3 miles away from कुतुब मीनार, जो कि कुतुब मीनार से 3 miles away है, 3 किलोमीटर, 3 miles away, दूर है, ओके, away from कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? यू नो ना वेरी वेल, दिल्ली, ओके। और अ लार्ज टैंक नॉन हौज़े इलाही वॉज कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई वाटर टू सिरी। और सिरी में जहाँ पर उनके सोल्जर्स रहते थे, वहाँ पर पानी की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने वाटर टैंक बनवाया। वाटर टैंक बनवाया, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? हौज़े इलाही। अलाई, ओके, was constructed to supply water to Siri. Firoz Shah later repaired his tank and built a mosque and मदरसा अराउंड इट। और इसके बाद जो फिरोज शाह आए थे, उन्होंने क्या किया था? इस हौज़े इलाही को क्या किया उन्होंने? रिपेयर किया हिज टैंक को एंड बिल्ड, और वहाँ पे क्या बनाई? मॉस्क बनाई। मॉस्क क्या होती है? मस्जिद। अ प्लेस विच वर्शिप फॉर द इस्लामिक, जहाँ पे वो पूजा करने के लिए जाते हैं, वर्शिप करते हैं। और क्या बनाया वहाँ पे? मदरसा। ओके। और इस वाटर टैंक को किस नाम से जानने लगे वे वहाँ पर? फिर बाद में दिस प्लेस वॉज गिवन द नेम ऑफ हौज़ खास। हौज़ खास, ओके। और द रॉयल टैंक, रॉयल टैंक, गॉट इट। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी वॉज डाइड इन विच पीरियड? AD 1316, okay, and there was a war of succession, and Ghazi Malik, a governor under Alauddin Khalji, इनके क्या थे? गवर्नर थे, named खुसराव मलिक। थे। इन्होंने क्या किया? द लास्ट खालजी रूलर एंड टुक ओवर द थ्रोन। आफ्टर ही अटेन्ड द थ्रोन, ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। इट मीन्स यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड रहा, खालजी डायनेस्टी, और उसके बाद खालजी डायनेस्टी बिल्कुल फिनिश हो जाती है, और उसके बाद किसकी डायनेस्टी आती है? तुगलक डायनेस्टी, ओके। Tughlaq dynasty. In the time period of Tughlaq dynasty from 1320 to 1413. Okay. And student, more about में आप क्या देखेंगे कि पद्मावत, a book written by Malik Muhammad Jaisi mentioned Alauddin Khalji's attack on Chittor to acquire the beautiful queen of Rana Ratan Singh, रानी पद्मिनी, ओके। उसमें क्या लिखा है? महमूद जायसी ने एक मेंशन किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से अटैक किया था, किसको पाने के लिए? चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को पाने के लिए। एंड द राजपूत फॉट ब्रेवली बट लॉस्ट द बैटल। तो क्या हुआ? राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन वो इस बैटल को हार गए। टू सेव देयर ऑनर, रानी पद्मिनी एंड द लेडीज परफॉर्म्ड जोहर बाय जंपिंग इनटू द फायर। आपने वो देखी होगी ना फिल्म जो अभी आई थी, रानी पद्मावती,
ओके, वो रियल में इसी पर बेस्ड है। और वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? अलाउद्दीन खालजी के टाइम पीरियड में। और वो उसको पाने के लिए उन्होंने राणा रतन से लड़ाई की थी, लेकिन राणा रतन हार गए थे। लेकिन रानी पद्मिनी ने अपने ऑनर के लिए, अपने सम्मान के लिए उन्होंने क्या किया? अपने आप को जौहर क्या होता है? कुआं होता है फायर का, उसमें अपने आप को सौंप दिया। ओके, नाउ this time period for the Tughlaq dynasty and time period of the given here, and student Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of the Tughlaq dynasty। ये कौन थे? ये फाउंडर थे, फाउंडर। इन्होंने ही तुगलक डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट की थी। अपनी डायनेस्टी का नेम क्या दिया? तुगलक। ओके, एंड ही वॉज अ जस्ट रूलर एंड restored order in the Sultanate. He crushed rebellion and recognized his army. He carried out military campaign in Odisha, Bengal and Warangal. Okay, and student, he brought about many economic reforms, and to give respite to the farmers he reduced the farm tax। उन्होंने फार्म टैक्स को घटा दिया to 1/10 of the produce, and that too was waived off in case of drought हुआ था उस टाइम। ड्रॉट मीन्स अकाल आया था, तो उन्होंने क्या किया? फार्मर्स को राहत देने के लिए उनका टैक्स घटा दिया। ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट, गयासुद्दीन तुगलक वाज किल्ड बाय, इसको किसने मारा? किल्ड बाय, उन्हीं के ही बेटे ने उसको मार दिया, जो कि कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक थे। तुगलक उस टाइम क्या होता था? अपने आप को राजा बनाने के लिए, ये अपने वैसे तो अपनी राजगद्दी छोड़ते नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे राजा बनना चाहते थे और अपने आप को राजा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? गयासुद्दीन अपने ही पिता को उन्होंने मार डाला। और कब मारा? 1325 में, एडी में। ओके, और आफ्टर द गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन बना सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक। एंड द टाइम पीरियड फ्रॉम एडी 1325 टू 1351, यहाँ तक वो, इस समय तक वो एज अ एम्परर, एज अ सुल्तान वो रहे। एंड वन मोर स्टूडेंट, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ लर्नड मैन। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ, वो बहुत ही इंटेलिजेंट लर्ड मैन थे, बहुत सी उन्होंने चीज़ें सीख रखी थी। ओके, वो क्या क्या थी? ही वॉज अ स्कॉलर, बहुत ही इंटेलिजेंट थे ये ऑफ फिलोसॉफी में। स्कॉलर्स ऑफ किन किन में? फिलोसॉफी एंड मैथमेटिक्स, और किस में थे वो? एस्ट्रोनॉमी एंड लॉजिक। हर किसी भी चीज़ का वो लॉजिक लगाते थे। ओके, किसी घटना के, किसी भी इंसिडेंट होने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। ओके, सो ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड लॉजिक। एंड वन मोर स्टूडेंट, बट ही वॉज एन इम्प्रैक्टिकल पर्सन, वो इम्प्रैक्टिकल थे। ओके, एंड हाउ, क्या होता था? सम ऑफ हिज स्कीम्स, जो भी वो स्कीम्स चलाते थे, ओके, जो भी वो स्कीम्स होती थी उनकी, ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ऑलमोस्ट रन्ड द एम्पायर एंड मेड हिम अनपॉपुलर। वो क्या होती थी? वो रन, वो अपने आप ही क्या करते थे? उन चीज़ों को चलाते थे और अपने आप ही उनको ख़त्म कर देते थे, उनको रंड कर देते थे। और इससे क्या होता था? वो अनपॉपुलर थे, इसी वजह से वो पॉपुलर नहीं थे। So that's why student, he was often called the wisest fool in history। और इन्हीं के कारण ही उसको हिस्ट्री में किस नाम से जाना गया? द वाइजेस्ट
फूल इन हिस्ट्री। इसका मतलब है इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो मूर्खता के काम करते थे, और जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन में भी और जो थे सभी के सभी उसके सेटिस्फाइड नहीं थे, और जो भी वो स्कीम चलाते थे उन्हीं को खुद ही वो फेल कर देते थे, वो फेल हो जाती थी। ओके, सो दैट्स वाई उसको किस नाम से जाना गया, द वाइजेस्ट फूल इन हिस्ट्री, और अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स। इज दैट क्लियर? एंड स्टूडेंट सम ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दैट फेल्ड वर, और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव के फेल होने के मेन जो कारण रहे हैं वो क्या रहे हैं, चलो हम उसको रीड करते हैं। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न वॉज दैट टाइम शिफ्टिंग ऑफ दिल्ली, शिफ्टिंग ऑफ दिल्ली। अब इससे पहले जितने भी सुल्तान आए वो उनकी दिल्ली ही उनकी मेन कैपिटल रही है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दिल्ली को शिफ्ट कर दिया। वेयर मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवनागरी। दिल्ली से उसने कहाँ पर शिफ्ट की अपनी कैपिटल, देवागिरी। ओके, एंड लोकेटेड 1400 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, जो कि दिल्ली से कितनी दूर थी, दिल्ली से ये थी 1400 किलोमीटर फार अवे। ओके, एंड रीनेम्ड द सिटी एज दौलताबाद, और देवागिरी को उसने किस नाम से रीनेम्ड किया, किस नाम, क्या नाम रखा, दौलताबाद। ओके, और he felt that Devagiri being in the center of his empire would be more suitable for him. Moreover, he felt the Devagiri would be safer from the threat of Mongols. The schemes, however, failed. अब ये स्कीम फेल्ड हो गई बिकॉज ऑफ टू रीज़न से। वो रीज़न क्या थे, टू रीज़न थे यहाँ पर। जब उन्होंने क्या किया, देवागिरी, दौलताबाद जिसका नाम रखा गया, उसको अपनी कैपिटल बनाया, लेकिन कैपिटल बनाई बेशक उन्होंने, लेकिन उस टाइम टू रीज़न उसके सामने थे जिसके कारण ये उनकी ये जो स्कीम लगाई थी वो फेल्ड हो गई। हाउ? एज स्टूडेंट शिफ्टिंग द एंटायर पॉपुलेशन टू दौलताबाद, जो कि उस टाइम दिल्ली में जितने भी लोग रहते थे, कम्युनिटी रहती थी, उनको शिफ्ट किया गया वेयर, दौलताबाद में, जिसके कारण क्या हुआ, कोज्ड hardships to people. Many people could not face the scorching summer heat and died on the way. अब दिल्ली से जो कम्युनिटी चल रही थी, कहाँ चल रही थी, दौलताबाद की तरफ आ रही थी, उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कैसे? उस टाइम बहुत ज़्यादा समर थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, और क्या किया, मैनी पीपल कुड नॉट फेस वो हीट को, बहुत ही स्कॉर्चिंग जो कि हीट थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दे कुड नॉट फेस, वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पाए, एंड डाइड, और वो क्या हुए, डाइड ऑन द वे। ओके, एंड आफ्टर दैट सुल्तान ऑल्सो, द सेकेंड रीज़न, दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न, एंड द सेकेंड रीज़न क्या हुआ स्टूडेंट, सुल्तान सुन रियलाइज हिज फुली, उसको क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, रियलाइज्ड, हिज फुली, अपनी गलती का, उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स और कंट्रोल नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दौलताबाद। अब क्या हुआ, इस कारण वो क्या नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। ही फाउंड, मोहम्मद बिन तुगलक फाउंड डिफ़िकल्ट to protect where the north west border, एक तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर था, और सेकंड वन था उस टाइम नॉर्थ इंडिया,
क्योंकि शिफ्टिंग में क्या हुआ, शिफ्टिंग में इधर उधर आने जाने में जो उनकी पावर थी वो रिड्यूस हो गई और सभी के सभी लोग इधर उधर कंसंट्रेशन उनका लॉस हो गया, कुछ लोग मर गए, कुछ कमज़ोर हो गए इधर उधर आने जाने में। तो क्या हुआ कि वो अपने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को और नॉर्थ इंडिया को क्या नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ, मंगोल रेड्स इन दिल्ली इंक्रीज रैपिडली। तो इस कारण क्या हुआ, उन पर किसने अटैक किया, मंगोल ने। क्योंकि हर एक कोई आसपास रहने वाले जितने भी रेबिलियन होते थे वो हमेशा ये देखते थे कि किस राजा को किस टाइम उनको हराना है और कब उन पर अटैक करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मंगोल ने उन पर क्या किया, रेड की विदिन 5 मंथ्स, विदिन 5 मंथ्स, 5 मंथ्स के बाद ही क्या हुआ, within 5 months he ordered people to shift back to Delhi। बाद में ही आफ्टर within 5 months ऑर्डर किया, ordered again for what, shift back to Delhi, shift back to Delhi, कि वापस आप लोग दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाएं। ओके, दिस फुलिशनेस कॉज्ड अ lot of unhappiness and misery to the people. It also caused a huge loss to the treasury। okay, अब इधर उधर आए जाएंगे तो खजाने में भी तो कमी होगी ही। एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग, मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, कौन सी टोकन करेंसी चलाई, कॉपर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स वर इश्यूड। वन मोर स्टूडेंट, यहाँ पर कॉपर कॉइन्स क्यों हुए, क्योंकि राजा के काल में तो सोने के गोल्डन कॉइन्स होते थे या और सिल्वर कॉइन्स होते थे, यहाँ पर कॉपर कॉइन्स क्यों हुए। देखो, जो उन्होंने 2 रीज़न थे उसकी मूर्खता के। फर्स्ट क्या था, एक तो शिफ्टिंग दिल्ली दौलताबाद, दिल्ली से क्या किया, देवागिरी दौलताबाद को शिफ्ट किया आने जाने में, और जो बीच में मंगोल ने जो अटैक किया था उस टाइम बहुत सी करेंसी जो थी, जो बहुत सा खजाना था उसका लॉस हुआ। ओके, इट मीन्स द जेनरसिटी ऑफ सुल्तान एंड द फेलियर ऑफ हिज स्कीम रिजल्टेड इन अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। सुल्तान अगेन थॉट ऑफ एन एम्बिशियस प्लान। ओके, और उसने दोबारा से क्या सोचा, एम्बिशियस प्लान क्या था, उनको बहुत सी नुकसान, फाइनेंशियल लॉस हुआ था। He decided to issue token currency. Copper coins were issued. Copper coins were issued, and which had the same legal value. Legal value रखी उनकी पूरी की पूरी वैसी की वैसी, and एज अ सिल्वर और गोल्ड कॉइन, जितनी कि सिल्वर और गोल्ड की थी। लाइक हिज अदर स्कीम्स, दिस स्कीम ऑल्सो फ्लॉप्ड। ये जो उन्होंने स्कीम रखी थी ये भी क्या हुई, फ्लॉप्ड हो गई। ओके, और क्या हुआ, कॉपर कॉइन्स वर चीपर एंड वेरी इजी टू कॉपी। और कॉपर कॉइन्स क्या थे, ये बहुत ही क्या थे, ये स्कीम बहुत ही चीपर थी और आसानी से कोई भी इनको कॉपी कर सकता था, और कॉपी करके वो खुद, आप एक चीज़ देखें, अगर आपके पास करेंसी छापने की मशीन हो तो आप क्या करोगे, कोई पैसे की वैल्यू रहेगी। तो उनके भी टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये बहुत ही चीपर थी जो स्कीम उन्होंने चलाई थी, और इसको कोई भी कॉपी कर सकता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर कॉइन्स बनने स्टार्ट हो गए। पीपल स्टार्टेड मिंटिंग देयर ओन कॉपर currency, and the empire was flooded with counterfeit coins. The financial system of the current country began to collapse. Okay, foreign traders lost faith in his currency and this affected the trade. Okay, so तुगलक ने क्या किया, तुगलक soon realized his mistake and ordered the people to return the copper currency in exchange of gold and silver coins। दोबारा से जब ये चीज़ होने लगी तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से एक्सचेंज किया अपनी करेंसी को, किस में,
गोल्ड कॉइन्स में और सिल्वर कॉइन में। ओके, दिस वॉज अगेन अ मिस्टेक, दोबारा से ये मिस्टेक हुई। द सुल्तान हैड टू गिव सिल्वर कॉइन्स इन एक्सचेंज ऑफ even forged coins. The experiment was withdrawn, but it made the treasury empty. According to Barani, the heaps of copper coins that were returned in Tughlaqabad were as high as mountains. Okay, and the student remember one more thing कि मोहम्मद बिन तुगलक had no any son, उनके पास कोई बेटा नहीं था। After his death, his cousin named फिरोज शाह तुगलक occupied his throne, और उनके जो कज़न थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने क्या किया, उनकी राजगद्दी को संभाला। ओके, अब स्टूडेंट फिरोज शाह वॉज रिगार्डेड एज एन आइडियल रूलर थे ये। ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल एट दिल्ली एंड नेम्ड इट फिरोज़ाबाद, जो कि नाउ नोन एज फिरोज शाह कोटला के नाम से आज उसको जानते हैं। एंड बिल्ड द फिरोज शाह कोटला फोर्ट। ही ऑल्सो बिल्ट, और उन्होंने साथ साथ क्या बनवाए, बिल्ड द सिटीज़ ऑफ फिरोजपुर, हिसार एंड जौनपुर। ओके, ही स्टार्टेड मैनी वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द पीपल, और लोगों के लिए बहुत से उन्होंने प्रोग्राम भी बनाए। वो क्या क्या थे, ही बिल्ट मॉस्क, मदरसा एंड हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउस इन्होंने बनाए। ही बिल्ट अ स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर चैरिटी, दान के लिए डिपार्टमेंट बनाए, किसके लिए, फॉर द पुअर और नीडी पर्सन के लिए। ही रिवाइव्ड एग्रीकल्चर बाय बिल्डिंग कैनल्स, नहरें इन्होंने बनवाई, डैम्स, रिजर्वोयर एंड एम्बैंकमेंट, जहाँ पर वाटर को सेव करके रखा जाता है। इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खेतों में फिर उस पानी को पहुँचाया जाता था। ओके, ही सेट अप वर्कशॉप टू ट्रेन स्लेव्स इन वेरियस क्राफ्ट्स। एंड वन मोर स्टूडेंट, उसके बाद हम ये जानेंगे कि मेजर दैट हैज टर्न्ड द एंड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी का कैसे खात्मा हुआ, कैसे वो फिनिश हुई। टू गेन द सपोर्ट ऑफ नोबल्स एंड यूलेमस, ही इम्पोज्ड जजिया ऑन द ब्राह्मण, ब्राह्मण पर इन्होंने जजिया कर लगाया। कैसे, कि अगर ये मंदिरों में जाएंगे तो इनको यहाँ पर एक तरह का जजिया कर देना पड़ेगा, मंदिरों में पूजा जब इनको करनी पड़ेगी। ही ऑल्सो introductions the system of giving land grants or iktas to the noble and made the iktas hereditary. This step made the nobles and ulemas very powerful, और इससे क्या हुए, बहुत ही पावरफुल होते चले गए। इन प्लेस ऑफ सैलरी ही स्टार्टेड गिविंग लैंड और जागीर टू द सोल्जर्स, को जागीर देते चले गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी जागीरदार बिकेम पावरफुल एंड बिकेम इंडिपेंडेंट होते चले गए वो। एंड आफ्टर फिरोज शाह रूल्ड फॉर 37 ईयर्स, 37 साल तक इन्होंने क्या किया, राज किया। आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर ब्रोक अप, हिज सक्सेसर्स वर वीक, उसके जो आने वाले जो वारिस थे वो बहुत ही कमज़ोर थे। मैनी रीजन्स बिकेम इंडिपेंडेंट, और इससे क्या हुआ, फिर बाद में तुगलक जो डायनेस्टी थी वो बिल्कुल फिनिश हो गई। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और वन मोर थिंग स्टूडेंट, द इन्वेजन ऑफ आमिर तिमूर, ये कौन थे, इन 1398 में ड्यूरिंग द रूल ऑफ लास्ट तुगलक रूलर द मंगोल किंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया आमिर तिमूर और तिमूरे लैंग ऑल्सो नोन एज तमेरलेन इन्वेडेड इंडिया। जो लास्ट का रूलर था तुगलक के बाद, उनके बाद ये आए। हिज इन्वेशन ब्रॉट अबाउट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही प्लंडर्ड दिल्ली एंड लेफ्ट इट इन रन्स, और इनके पास सिर्फ एक ही स्कीम थी, सब चीज़ों को तहस नहस करना, बर्बाद करना और मौत देना। इन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। ही देन मार्च्ड टू मेरठ, हरिद्वार एंड जम्मू। बिफोर लिविंग तिमूर अपॉइंटेड खिजर खान द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ सैयद डायनेस्टी। और यहीं से क्या किया इन्होंने, ये वैसे तो छोड़ के चले गए और उन्होंने अपनी जगह किसको अपॉइंट किया, खिजर खान को, और यहीं से फिर सैयद डायनेस्टी की शुरुआत हुई। और हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल रीड अबाउट द सैयद डायनेस्टी। सो टिल देन कीप रीडिंग।